Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, we are going to learn a new lesson from your English literature book. That is lesson number 3. It's on page number 13 to 17. And the name of the lesson is Goose Says Goodbye. First of all, I will do the reading of the whole lesson to get the pronunciation of the words correctly, and after that, I will explain the meaning of the whole lesson. So let's start with the reading. Goose says goodbye. It's almost time, said Goose. She gazed up at the clear blue sky. She felt the warm spring sun on her back. A gentle breeze ruffled her feathers. She hoped the breeze would blow towards the north tomorrow. That was when she would begin her flight back to Canada. A tailwind always helped. Goose waddled over to the old oak tree. The tree grew next to the pond that Goose had called home for the past 6 months. She found Squirrel nibbling an acorn at the base of the tree. I came to say goodbye, said Goose. I'm flying north tomorrow. There is nothing like a change in scenery now and then, said Squirrel. I took a little holiday to Taylor Farm last week. I had a great time playing hide and seek with the rabbits. No, said Goose, I am not taking a little holiday. I'll be gone for 6 months. I'll miss you, but I hope you have fun, said Squirrel. She scampered off in search of more acorns. Goose waddled over to the edge of the pond. She found Beaver swimming near the shore. Do you want to play a game? Asked Beaver. I could ask Dogtooth to join us. He's swimming nearby. I don't have time to play, said Goose. I came to say goodbye. I'm leaving for Canada tomorrow. I have a cousin who moved to Mexico a few years ago, said Beaver. She likes the climate there. Every now and then she sends a postcard. No, said Goose. I'm not moving away forever. I'll be back in the autumn. Have a safe trip and don't forget to write, said Beaver. He swam off to look for a playmate. Goose continued around the pond until she found her friend Turtle. Turtle was sunning himself on a rock at the edge of the pond. I came to say goodbye, said Goose. I have to leave for Canada tomorrow. I have an uncle who had to leave the pond, said Turtle. He grew too big and he needed more space. The park ranger moved him to a lake. No one is making me leave, said Goose. All the geese are leaving. We will be back in the autumn. I certainly hope so, said Turtle, and he slipped into the water. Goose was settling herself in for the night when she heard Owl call. Woo, woo. It's just me, said Goose. I'm going to sleep. Tomorrow is a busy day. Migration? Said Owl. Goodness, said Goose. You know. Of course, said Owl. That's what Canada geese do. They fly north in the spring and south in the autumn. Have 6 months gone by already? Yes, said Goose. Tomorrow is the big day. Hope you get a tailwind, said Owl, and off he flew in search of dinner. See you in September, said Goose. So, this is all about the reading of the lesson. Now, I will explain to you its meaning. It's almost time, said Goose. She gazed up at the clear blue sky. So जो goose है, goose हम हंस को बोलते हैं. So goose, she was looking towards the sky, which was very clear, which was without any clouds. And the goose, as soon as he looked towards the sky, she said that it's almost time. यानी वक्त अब आ गया है. हंस जो है ये आसमान की तरफ देखकर बोलती है कि अब वक्त आ गया है. She felt the warm spring sun on her back. That means इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि स्प्रिंग जो है स्प्रिंग आई है और विंटर ख़त्म हुआ है. एंड जो स्प्रिंग की वो धूप होती है वो इसके बैक पे पड़ रही थी. जो सन की हीट एंड लाइट है वो इसके बैक पे पड़ रही थी एंड इसको वार्म कर रही थी. अ जेंटल ब्रीज रफल्ड हर फेदर्स. एक हल्की सी हवा, जो हवा बहुत ही स्लोली चलती है, वो इसके परों को, इसके पंख को बेतरतीब कर रही थी. वो हिल रहे थे उस हवा की वजह से.
शी होप द ब्रीज वुड ब्लो टूवर्ड्स द नॉर्थ टुमारो। इसको एक उम्मीद थी कि कल जो है ये हवा नॉर्थ की तरफ चलेगी। दैट वॉज वेन शी वुड बिगिन हर फ्लाइट बैक टू कैनाडा। बिकॉज इसको कल नॉर्थ की तरफ ही जाना था, यानी कैनाडा जाना था। सो बिकॉज इसको कल मूव करना था, शिफ्ट होना था, एक जगह से दूसरी जगह जाना था। सो इसको ये उम्मीद थी कि कल हवा भी उसी डायरेक्शन में होगी। अ टेल विंड ऑलवेज हेल्प्ड। टेल विंड वी से जब हवा उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होते हैं। सो शी वांटेड कि कल जिस डायरेक्शन में ये मूव करने वाली थी, यानी कि नॉर्थ की तरफ, तो उसी डायरेक्शन में विंड भी मूव करे, ब्रीज भी मूव करे, हाउ एयर भी मूव करे, बिकॉज उससे इसको हेल्प मिलती थी, वो इसके लिए फ़ायदेमंद था। गूस waddled over to the old oak tree। तो अभी क्या किया गूस ने, ये इसने छोटे छोटे से स्टेप्स लिए, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एक ओक ट्री था वहाँ पे, उसके पास चली गई। द ट्री ग्रीव नेक्स्ट टू द पॉन्ड दैट गूस हैड कॉल्ड होम फॉर द पास्ट 6 months। ये पेड़ जो था ये एक पॉन्ड के नज़दीक था, उसके बगल में था। पौंड हम चश्मे को कहते हैं जो जिसमें पानी जो होता है। तो ये जो ट्री था ये इसका पिछले 6 महीनों से घर था। तो ये इसने छोटे छोटे कदम लिए और उस पेड़ की तरफ चली गई। शी फाउंड स्क्विरल निबलिंग एन अकॉर्न एट द बेस ऑफ द ट्री। वहाँ पे इसने क्या देखा, वहाँ पे इसने स्क्विरल को देखा जो वहाँ पे फ्रूट्स खा रही थी। जो ओक ट्री के फ्रूट्स होते हैं जिसको हम अकॉर्न कहते हैं, वो उसके छोटे छोटे बाइट्स ले रही थी। आई केम टू से गुड बाय सेट गूस, आई एम फ्लाइंग नॉट टमोरो। ये देखकर गूस ने स्क्विरल को बोला कि मैं आपको अलविदा कहने आई हूँ। आई एम हियर टू से गुड बाय टू यू, बिकॉज मैं कल मूव करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कैनेडा, मैं कल नॉर्थ जा रही हूँ। देर इज़ नथिंग लाइक अ चेंज इन सीनरी नाउ एंड देन सेड स्क्विरल। तो ये सुन के स्क्विरल ने बोला कि कुछ कुछ चेंज नहीं है सीनरी में, कुछ बदला नहीं है, जो जैसा कल था या परसों था वैसा आज भी है। आई टुक a little holiday to Taylor from last week. I had a great time playing hide and seek with the rabbits. तो स्क्विरल गूस को कहता है कि मैं भी पिछले हफ्ते एक छोटी सी छुट्टी पे गया था कुछ दिनों के लिए। कहाँ पे? टेलर फॉर्म में। एक फॉर्म जो है वहाँ गया था मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ मनाने, एंड मुझे वहाँ पे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि मैंने वहाँ पे हाइड एंड सीक खेला रैबिट्स के साथ। नो सर गूस, आई एम नॉट टेकिंग अ लिटिल हॉलीडे। ये सुनकर गूस कहती है कि नहीं, मैं कुछ छुट्टियों पे नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे नहीं जा रही हूँ। बट आई विल बी गॉन फॉर 6 months, लेकिन मैं 6 महीनों के लिए जा रही हूँ। मैं आपकी तरह कुछ दिनों के लिए नहीं जा रही हूँ कि जो मुझे ये जगह जो है बिल्कुल सेम लगेगी, बट मैं 6 महीनों के लिए जा रही हूँ। आई मिस यू बट आई होप यू हैव फन सेड स्क्विरल। ये सुन के स्क्विरल इनको कहते हैं कि हाँ जी, फिर मैं आपको बहुत ही मिस करूँगा, बट मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ जा रहे हो आपको वहाँ पे मज़ा आएगा। शी स्कैम्पर्ड ऑफ इन सर्च ऑफ मोर अकाउंट्स। और ये बोल के वो जल्दी से दौड़ा टूवर्ड्स द अकाउंट्स, उन फ्रूट्स की तरफ जो ओक ट्री के होते हैं उनकी तरफ, सो दैट उसे और मिल सके। तो ये वो ढूंढने गया ये कह के। गूस waddled over to the edge of the pond। अभी गूस जो है इसने अगेन चलना स्टार्ट किया, छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट किया, एंड अब ये पॉन्ड के किनारे चली गई, एक कोने में चली गई। शी फाउंड बीवर स्विमिंग नियर द शोर। वहाँ पे इसने एक एनिमल को देखा जिसको हम बीवर कहते हैं, तो इसने वहाँ पे बीवर को देखा। डू यू वॉन्ट टू प्ले अ गेम आस्क्ड बीवर। तो ये जब बीवर ने गूस को देखा तो वो इनको ऑफर करती है, गूस को बोलता है कि आप आके मेरे साथ क्या खेलोगे। आई कुड आस्क डक टू जॉइन अस। मैं डक को भी कहूँगा कि वो भी आके हमसे हमारे साथ खेले। ही इज स्विमिंग नियर बाय, वो यहीं पे तैर रहा है। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले सेड गूस। ये सुन के गूस ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आई केम टू से गुड बाय, मैं आपको अलविदा कहने आई हूँ। आई एम लीविंग फॉर कैनेडा टुमारो, क्योंकि मैं कल कैनेडा जा रही हूँ। आई हैव अ कज़िन हु मूव टू मैक्सिको अ फ्यू ईयर्स अगो सेड बीवर। ये सुन के बीवर इसको कहता है कि मेरा एक कज़िन है जो कि मैक्सिको गया है, कुछ साल पहले वो मैक्सिको चला गया, वहीं रहने लगा है। शी लाइक्स द क्लाइमेट देयर, उसको वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा लगा। एंड एवरी नाउ एंड देन शी सेंड्स अ पोस्ट कार्ड, एंड वो मुझे आए दिन खत भेजती रहती है। तो
No, said Goose. I am not moving away forever. I'll be back in the autumn. बीवर को लगा कि शायद जो गूस है ये भी हमेशा के लिए इसके कज़न की तरह जा रही है, बट इसको गूस कहती है कि नहीं, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं ऑटम में बैक वापस आ जाऊँगी, मैं सिर्फ 6 महीनों के लिए जा रही हूँ। हैव ए सेफ ट्रिप एंड डोंट फॉरगेट टू राइट। ये कहकर बीवर इसको कहता है कि आपका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा हो, एंड आप लिखना नहीं भूलना, मुझे लिखते रहना कि आपको कैसा मज़ा आ रहा है, अपना हाल चाल आप मुझे लिखते रहना। ही swam off to look for a playmate, एंड ये कहकर वो तैरने लगा टू फाइंड समवन जो इसके साथ खेले। गूस कंटिन्यूड अराउंड द पॉन्ड until she found her friend turtle. अब इनसे बात ख़त्म करके जो गूस है ये फिर से अभी इस पॉन्ड के इर्द गिर्द घूमने लगी टू फाइंड कि कोई और मत इसे फ्रेंड जो होगे वहाँ पे वो मत मिलेगा जिसको वो गुड बाय कहेगी। एंड उसे मिला भी कौन, इसका फ्रेंड टर्टल। टर्टल वॉज सनिंग हिमसेल्फ ऑन अ रॉक ऑन द एज ऑफ द एट द एज ऑफ द पॉन्ड। जो टर्टल था वो अपने जो हम कहते हैं ना धूप सेकना, तो वो धूप सेक रहा था। एक 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 पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर जो है उस पर धूप धूप सेक रहा था पौंड के पास ही। आई केम टू से गुड बाय सेड गूस। तो गूस ने कहा कि मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। आई हैव टू लीव फॉर कैनेडा टुमारो। तो गूस ने इसको कहा कि मैं आपको अलविदा कहने आई हूँ, मैं कल कनाडा जा रही हूँ। आई हैव एन अंकल हु हैड टू लीव द पॉन्ड सेड टर्टल। जब टर्टल ने इसकी ये बात सुनी तो वो इसको अपने अंकल की स्टोरी सुनाने लगी कि मेरा जो अंकल है वो भी उसने भी ये जो चश्मा है ये जगह जो है छोड़ दी। ही ग्रीव टू बिग एंड ही नीडेड मोर स्पेस, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था और उसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी। तो जो यहाँ का मालिक है, जो पार्क रेंजर है, उसने उसको एक लेक में मूव किया, उसको वहाँ ले गए। नो वन इज़ मेकिंग मी लीव सेड गूस। तो गूस ने कहा कि नहीं, मुझे कोई यहाँ से जाने को नहीं कह रहा है। ऑल द गीस आर लीविंग, वी विल बी बैक इन द ऑटम। हम सारे जो है जो भी जितने भी गीस वहाँ पे हैं, गूस का प्लूरल गीस होता है। सो जितने भी गूस है, हम सारे गीस है, हम जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम सिर्फ टेम्पररी जा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, हम ऑटम में वापस आएंगे। आई सर्टनली होप सो सेड टर्टल एंड ही स्लिप्ड इनटू द वाटर। तो ये सुन के टर्टल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो, एंड ये कह के वो पानी में उसने वो स्लिप अपने आप को पानी में वो ले गया एंड चला गया। Goose was settling herself in for the night when she heard owl call woo woo. तो अभी जो गूस है वो सोने की तैयारी कर रही थी, ही was settling herself, क्योंकि कल इसको एक सफ़र पे जाना था। तो ये अपने आप को अब तैयारी कर रही थी सोने की। तो इतने में इसने आउल की आवाज़ सुनी, वू वू। इट्स जस्ट मी सेड गूस। तो ये सुन के गूस ने कहा कि सिर्फ मैं हूँ, मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि कल मेरा बहुत बड़ा दिन है। माइग्रेशन सेड ओल। तो ओल ने कहा कि माइग्रेशन माइग्रेशन मीन्स जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो जब इसने आउल को बोला कि मैं कुछ मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो आउल इसको कहता है कि क्या आप माइग्रेट करने वाले हो, एक जगह आप कहीं जाने वाले हो। गुडनेस सेड गूस। गूस ने कहा जी हाँ, ये एक अच्छी बात है, इसकी गूस के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि शी इज़ गोइंग टू माइग्रेट। इसने इसको बोला कि आपको तो पता ही है कि मैं क्यों करने वाली हूँ ऐसा, तो या मैं माइग्रेट करने वाली हूँ, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। ऑफ कोर्स दैट आउल। तो आउल ने कहा हाँ जी, मुझे पता है कि आप क्यों ये कर रहे हो। दैट्स व्हाट कैनेडा गीज डू। जो कनाडा की गीज होती हैं वो यही करती हैं जो आप करते हो। दे फ्लाई नॉर्थ इन द स्प्रिंग एंड साउथ इन द ऑटम। वो स्प्रिंग में, बाहर में वो कहाँ जाते हैं, कनाडा जाते हैं, एंड फिर जब ऑटम आता है तो फिर वो वापस यहाँ साउथ आते हैं। हैव 6 months गॉन बाय ऑलरेडी। तो ये अब गूस से पूछता है कि क्या 6 महीने हो गए आपको यहाँ पे। यस सर गूस, टुमारो इज़ द बिग डे। तो गूस ने कहा जी हाँ, मुझे यहाँ पे 6 महीने हो गए, तो कल बहुत बड़ा दिन है। होप यू गेट अ टेल विंड सेड आउल। तो ये कहकर आउल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको कल टेल विंड आपको मिलेगा, यू विल गेट दैट, कि हवा भी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, सो दैट आपकी फ़्लाइट जो है, आपका जो फ्लाई करते हो वो आपके लिए ईजी होगा। एंड ऑफ ही फ्लू इन सर्च ऑफ डिनर। एंड ये कहकर वो खाने की तलाश में चला गया।
सी यू इन सेप्टेम्बर कॉल्ड गूस। ये कहकर गूस ने इसको बोला कि चलो मैं आपको फिर सितंबर में मिलती हूँ, एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइग्रेशन, कि कैसे गूस अपने फ्रेंड्स जहाँ पे वो रह रही थी, अपने सारे फ्रेंड्स को गुड बाय कह रही है, उनको बता रही है कि वो 6 महीनों के लिए माइग्रेट करने वाली हैं। 6 महीने के बाद वो ऑटो में फिर से उस जगह आ रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये समझ आया। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।